Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 2, which name is polynomial. Exercise 2.1 polynomial. Clear? तो देखेंगे, we use two type quantity in mathematics. We use generally two type quantity in mathematics. First is variable quantity, and second is non-variable quantity. It means constant quantity. So we use two type quantity in mathematics. First is variable quantity and second is non-variable quantity. Okay. So generally we can say changeable quantity in mathematics is known as variable quantity, and non-changeable quantity in mathematics is known as non-variable quantity. Okay. Changeable quantity in mathematics is known as variable quantity and non-changeable quantity in mathematics is known as non-changeable quantity, non-variable quantity, or we can say constant quantity. Clear? On the other hand, we can say the quantity which value is changeable in mathematics. The quantity which value is changed in mathematics, then the quantity is known as variable quantity. Okay. The quantity which value is changed in mathematics, then the quantity is known as variable quantity. For example, x, y, z ... These are variable quantity. Okay. And the quantity which value have no change in mathematics, then the quantity is known as non-variable quantity or constant quantity. Okay. For example, 0, -3/8, -7, 4, pi. Clear? अब pi is constant. पाई कौन सी क्वांटिटी होती है? कांस्टेंट होती है. और नंबर कौन सी होती है? इरेशनल नंबर. बिकॉज पाई ए रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड डायमीटर ऑफ सर्कल. रेशियो को अपन फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं. ए रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल एंड diameter of circle in a standard circle which have circumference is 22 unit and diameter is 7 unit, then the ratio of circumference of circle and diameter of circle is equal to a constant quantity, and the constant quantity is known as pi. This is definition of pi. In a standard circle which have circumference is 22 unit and diameter is 7 unit, then the ratio of circumference and diameter is known as is equal to a constant, and the constant is known as pi. Clear? Value अब इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 3.14 ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 3.14,
और एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए पाई है जो क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है। ओके, तो द क्वांटिटी which value is changed in mathematics, then the quantity is known as variable quantity, and the quantity which value have no change in mathematics, then the quantity is known as non variable quantity, or we can say constant quantity. Clear? Now operation denoted by a star. Types of operation is for plus, minus, multiply and division. Operation denoted by a star in mathematics. Types of operation: addition, subtraction, multiplication and डिवाइडेशन। क्लियर? तो ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हैं और ये 4 टाइप्स का होता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके, नाउ अब एक आता है फंक्शन। व्हेन वी ऑपरेट द ऑपरेशन बिटवीन ओनली वेरिएबल, only non-variable, and variable and non-variable both, then we obtained formation of function. When we operate the operation only variable, only non-variable, and non-variable or variable or non-variable both, then formation of function. Okay, so type of function, types of function, 2 types. First is algebraic function and second is numeric function. ओके, तो ऑपरेशन स्टार से डिनोट करेंगे और ये 4 टाइप्स का होता है। और फंक्शन जब अपन ओनली वेरिएबल के मिडिल में ऑपरेशन ऑपरेट करें, या नॉन वेरिएबल के मिडिल में ऑपरेशन ऑपरेट करें, या दोनों के मिडिल में ऑपरेशन ऑपरेट करें, तो किसकी फॉर्मेशन होएगी, फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स का, अलजेब्रिक फंक्शन एंड न्यूमेरिक फंक्शन। ओके, तो अलजेब्रिक फंक्शन देखिए क्या होता है। When we operate the operation between only variable or variable and non-variable both, then the function is known as algebraic function. Example 4: xy plus yz plus zx. This is a algebraic function because we operate the operation between only variable. Here 3 variable present, x, y and z. x, y and z ये वेरिएबल्स हैं क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, और इनकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, तो ये नॉन वेरिएबल क्वांटिटी होगी। तो x, y एंड z वेरिएबल है यहाँ पे। ओके, और ऑपरेशन कौन कौन सा है, एक तो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है, एक प्लस का है। मल्टीप्लाई है और प्लस, 2 ऑपरेशन ऑपरेट हुए हैं। ओके, किसके मिडिल में हुए, वेरिएबल के मिडिल में। तो ये कौन सा फंक्शन की फॉर्मेशन होगी, अलजेब्रिक की। सेकंड इज 3x माइनस 5y8। यहाँ पे ऑपरेशन ऑपरेट बिटवीन वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल, ये भी अलजेब्रिक फंक्शन है
because operation operate between variable and non-variable. Okay, so this is a algebraic function and this is also algebraic function. We can say, on the other word, we can say in any function variable is present. In any function any variable is present, hence the function is known as algebraic function. In any function variable is present, hence the function is known as वेरिएबल फंक्शन. यहाँ पे 3 वेरिएबल प्रेजेंट है इस फंक्शन में. ओके, एक्स वाई एंड जेड. और यहाँ पे कितना वेरिएबल प्रेजेंट है? ओनली वन, ऑन एक्स. ओके, हाउ मेनी ऑपरेशन इन दिस फंक्शन? 3. यहाँ पे नॉन वेरिएबल वेरिएबल के मिडिल में मल्टीप्लाई है. दिस इज माइनस ऑपरेशन एंड दिस इज डिवाइडेशन ऑपरेशन. तो 3 ऑपरेशन ऑपरेट हुए. ओके, now second is numeric function. When we operate the operation between only non variable, then the function is known as numeric function. Then the function is known as numeric function. Example for 3 minus 5y2 5y8 plus 2. This is a numeric function. On the other word, we can say in any function any variable is absent, then the function is known as numeric function. ये numeric function है क्यों? क्योंकि इसमें कोई variable नहीं है. और ये दोनों algebraic function है क्यों? क्योंकि first example में 3 variable present है और second example में 1 variable present है. Okay, तो when we operate the operation between only non-variable, then the function is known as numeric function. On the other word, we can say in any function any variable is absent, then the function is known as numeric function. और यहाँ पे algebraic function में when we operate the operation between only variable or variable and non-variable both, then the operation is known as algebraic function. On the other word, we can say in any function any variable is present, then the function is known as algebraic function. Clear? Now number of term in any function, in any function is equal number of plus and minus sign. Number of any term, number of term in any function, number of term in any function is equal number of plus and minus sign. According to mathematician, René Descartes. ओके, कोई भी फंक्शन होता है उसमें नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने हैं, तो आप किसको काउंट करोगे? प्लस एंड माइनस के साइन को काउंट कर लो आप. ओके, तो नंबर ऑफ टर्म आपको पता चल जाएगा. बट इसमें एक प्रॉब्लम है. नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस आर इन ब्रैकेट. इफ number of plus and minus are in bracket, then they are non countable. यानी ब्रैकेट के अंदर जो प्लस माइनस है उनको आप काउंट नहीं कर सकते जब आप नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर रहे हो. ओके, आउट ऑफ ब्रैकेट प्लस माइनस है वो आप काउंट कर सकते हो जब आप नंबर ऑफ टर्म किसी फंक्शन में
काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, इसमें हाउ मेनी टर्म इन दिस फंक्शन, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल प्लस है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे ये फर्स्ट प्लस लग गया, ये सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया, 2 टर्म हो गए, ये प्लस लग गया, थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया, 3 टर्म। यहाँ पे प्लस है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये माइनस लग गया, सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया। यहाँ पे 2 टर्म है, एक तो 3x और एक -5/8। यहाँ पे 3 टर्म है, 1 ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये 2 और ये 3। इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म हो गए, ओके। तो नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस साइन in any function, then the number of plus minus sign is known as number of term, okay. Now type of term, types of term, एक तो वेरिएबल टर्म होता है, वेरिएबल टर्म, वेरिएबल टर्म, और सेकंड इज कांस्टेंट टर्म, constant term, okay. If in a term variable is present, any variable is present, then the term is known as variable term. If in a term variable is absent, then the term is known as constant term. जैसे ये एग्जांपल है, मैं इसको रीराइट करता हूँ, 3x - 5/8, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे कितने टर्म है? 2 टर्म है, एक तो ये टर्म है और सेकंड ये टर्म है। तो इसमें वेरिएबल आ गया x, तो ये कौन सा टर्म हो गया? वेरिएबल टर्म। कौन सा टर्म हो गया? वेरिएबल टर्म। और इसमें वेरिएबल नहीं आया, एब्सेंट है वेरिएबल इस टर्म में, तो ये कौन सा टर्म हो गया? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू ऑफ कांस्टेंट टर्म डज नॉट चेंज। और जैसे ही x की वैल्यू आएगी तो इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो वेरिएबल टर्म होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है, और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू क्या नहीं होती? चेंज नहीं होती। तो नंबर ऑफ टर्म इन एनी फंक्शन, नंबर ऑफ प्लस एंड माइनस साइन अकॉर्डिंग टू मैथमेटिशियन रेने देकार्ते, नोट if plus and minus are in a bracket then they are non countable, okay. तो टाइप्स ऑफ टर्म, वेरिएबल टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट होए वो टर्म वेरिएबल टर्म होता है, और जिसमें वेरिएबल अब्सेंट होए वो टर्म क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। नाउ पॉलिनोमियल, polynomial denoted by px और fx in mathematics। यहाँ पे px और fx का मीन क्या है? फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे x क्या होएगा? वेरिएबल होएगा। अगर वेरिएबल y है तो क्या होएगा? फंक्शन ऑफ y, यहाँ पे y आ जाएगा। तो पॉलिनोमियल को मैथमेटिक्स में डिनोट किससे करते हैं? या तो px से, या फिर किससे डिनोट करते हैं? fx से। यह आपको ध्यान रखना है, ओके। पॉलिनोमियल को मैथमेटिक्स में किससे डिनोट करते हैं? px से या fx से डिनोट करते हैं। क्लियर?
तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल? इफ power of variable is the form of whole number in a algebraic function, then the algebraic function is known as polynomial. It means जब algebraic function में जो variables की power है वो कौन सी फॉर्म में होंगी? होल नंबर फॉर्म में होंगी. होल नंबर 0 1 2 3 4 5 ये आपको बताया हुआ है. द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0. इफ वी जॉइंट 0 इन नेचुरल नंबर, it means the number start from 0, then the number is known as whole number denoted by W. Okay, so when power of variable is the form of in the form of whole number, then the in a algebraic function, then the algebraic function is known as पोलिनोमियल. क्लियर? जैसे मैं आपको एक पोलिनोमियल का एग्जांपल दे देता हूं. 3x² + 2x + 5. यहाँ पे वेरिएबल कौन है? x है. ओके, तो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है. यहाँ पे इसके मल्टीप्लाई में 1 कर सकते हैं अपन, और 1 की जगह क्या कर सकते हैं? x की पावर 0. तो यहाँ पे पावर ऑफ वेरिएबल कौन सी फॉर्म में है? ये होल नंबर फॉर्म में है. तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन क्या कहलाएगा? पोलिनोमियल. व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर इन एल्जेब्रिक फंक्शन, इन ए एल्जेब्रिक फंक्शन, देन द एल्जेब्रिक फंक्शन इज नोन एज पोलिनोमियल. Okay, polynomial denoted by px or fx in mathematics, where x is variable. Px or the full form of px or fx, function of x. p से भी f बनता है, ph से फै बनता है, और f से भी क्या बनता है? फै. तो फै यानी फंक्शन ऑफ x, इसको भी क्या बोलते हैं? फंक्शन ऑफ x. ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल. What is the standard form of polynomial? We arrange the power of variable in descending order in a polynomial, then the form of polynomial is known as standard form of polynomial. We arrange the power of variable in the descending order, then the form of polynomial is known as standard form of polynomial. Okay, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा? x पावर n यानी बिगेस्ट पावर वाला टर्म पहले आएगा, यानी n की वैल्यू 10 होगी. तो नेक्स्ट क्या आएगा? इससे डिक्रीज n-1 यानी 10-1 9 वाला टर्म आएगा. फिर x पावर n-2 यानी 10-2 8 वाला टर्म आएगा. और ऐसे करते करते n-1 ये सेकंड लास्ट टर्म होएगा, और x पावर n-n यानी x पावर 0 ये 0 टर्म होएगा. यानी लास्ट टर्म वेरिएबल पावर 0 वाला टर्म होता है, और वेरिएबल पावर 0 वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म बोलेंगे. ओके, तो x वेरिएबल है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर उससे 1 कम हो गया, लेस हो गया, उससे 2 लेस हो गया. ठीक है, यानी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है. पावर ऑफ वेरिएबल कौन से ऑर्डर में है? डिसेंडिंग ऑर्डर में. ओके, अब यहाँ पे हमने 0 लेस किया है तो a0, यहाँ पे 1 लेस किया है तो a1, 2 लेस किया है तो a2, n-1 लेस किया है तो an-1, और n लेस किया है तो an. ओके, अब मिडल में प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है.
प्लस और माइनस, डॉट डॉट डॉट, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। ओके, यहाँ पे a0, a1, a2, an-1, an are coefficient in constant form. a0, a1, a2, an-1, an are coefficient in constant form. क्लियर? एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे 3x पावर 5 प्लस 3x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 5। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 5 वाला टर्म आ गया, ये x पावर 4 उससे कम हो गया, और ये x पावर 3 वाला टर्म हो गया, और दिस इज टर्म ऑफ x स्क्वायर एंड दिस इज टर्म ऑफ x एंड दिस इज टर्म ऑफ x पावर 0। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, और 1 को क्या राइट कर सकते हैं, x पावर 0। जिस वेरिएबल की पावर कुछ नहीं होती है, ऑटोमेटिक जिसका वैल्यू 1 होता है उसको अपन x पावर 0 राइट कर सकते हैं। ओके, तो ये 0 पावर वाला टर्म होता है, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। ये तो क्या है, कांस्टेंट टर्म हो गया अकेला, और ये सारे कौन से टर्म हो गए, 4 टर्म इसमें क्या, 5 टर्म इसमें क्या हो गई, वेरिएबल टर्म, और 1 टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। तो पॉलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल को कौन सी फॉर्म में राइट किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। कौन सी ऑर्डर में, डिसेंडिंग में, यानी पहले बिगेस्ट, फिर उससे लेस, फिर उससे लेस वाला टर्म, फिर उससे लेस वाला टर्म, फिर उससे लेस वाला टर्म, और सबसे लेस वाला टर्म। ओके, इसके साथ कंपेयर करते हैं इस फॉर्म के साथ, जैसे n की वैल्यू 5 आ गई, 5 माइनस 1 4 वाला टर्म, 5 माइनस 2 3 वाला टर्म, 5 माइनस 3 2 वाला टर्म, 5 माइनस 2 5 माइनस 4 1 वाला टर्म, 5 माइनस 5 0 वाला टर्म। तो ये आपको हमने एक एग्जांपल दिया। क्लियर? अब एक है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, if any number or any digit multiply with other digit, then any number or digit is known as coefficient of other digit. मैं रिपीट कर देता हूँ डेफिनेशन, if any number or digit multiply with other number or digit, then the number is known as coefficient of other digit. Okay, then the multiplier number or digit is known as coefficient of other number or digit. Okay, यानी जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना उसको स्किप कर दो, उसके मल्टीप्लाई में जो भी थिंग राइट की हुई है वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। ये आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल 4 माइनस 3xyz है, तो आपको कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ z, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस 3xy है, तो कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल माइनस 3xy। अब माइनस 3 का कोफिशिएंट पूछे, कोफिशिएंट ऑफ माइनस 3, तो इसके मल्टीप्लाई में जो थिंग है वो क्या होगा, इसका कोफिशिएंट माइनस 3 का xyz। माइनस 1 को अपन राइट कर सकते हैं माइनस 1 इंटू 3, तो माइनस 1 इंटू 3xyz, तो माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या होगा, 3xyz। ओके, माइनस 1 का, और कोफिशिएंट ऑफ 3 का ऑफ 3 क्या होगा, 3 को स्किप कर दो, माइनस xyz होगा, माइनस xyz। तो जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको आप स्किप कर देना, और उसके अलावा जो भी मल्टीप्लाई में होगी थिंग वो उसका कोफिशिएंट होगी। ओके, तो इफ एनी नंबर और डिजिट मल्टीप्लाई विद अदर नंबर, देन द मल्टीपलर नंबर और डिजिट इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ अदर डिजिट। ओके, तो ये कोफिशिएंट होता है।
जिसका कोफिशिएंट पूछे, जैसे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 इज 3, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इज +3, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज -3, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज +3, कोफिशिएंट ऑफ x इज -8 और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इट मींस 1 इज -5। क्लियर? तो जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको आप स्किप कर दोगे, उसकी मल्टीप्लाई में जो भी थिंग है वो उसका कोफिशिएंट होएगा। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ टर्म अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, सॉरी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म। types of polynomial according to number of term okay, types of polynomial according to number of term। तो फर्स्ट इज मोनोनोमियल, बायनोमियल, थर्ड इज ट्राइनोमियल, फोर्थ इज जीरोनोमियल, ओके। इफ in a polynomial having one term available, then the polynomial is known as mononomial। For example, 3x square, 2x, 3x पावर 35। तो यहाँ पे वन टर्म अवेलेबल है ये 3 एग्जाम्पल्स में, तो ये तीनों किसके एग्जाम्पल हो गए? मोनोनोमियल के। ओके। सेकंड इज इफ इन ए पोलिनोमियल हैविंग 2 टर्म अवेलेबल, देन द पोलिनोमियल इज नोन एज बायोनोमियल। एग्जाम्पल फॉर 3x स्क्वायर प्लस 5, 2 टर्म अवेलेबल हो गए, प्लस एंड प्लस 2 हो गए। 5y स्क्वायर माइनस 5y8, यहाँ पे भी 2 टर्म अवेलेबल हो गए। 3x क्यूब माइनस 7, यहाँ पे भी 2 टर्म अवेलेबल हो गए, तो दिस इज बायोनोमियल। ट्राइनोमियल, इफ इन ए पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स अवेलेबल, देन द पोलिनोमियल इज नोन एज ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल फॉर 3x क्यूब माइनस 5x प्लस 7, 1 2 3, तो दिस इज टाइप ऑफ ट्राइनोमियल। This type of polynomial is trinomial। 5y cube minus 3y plus 8, this is also example of trinomial। And zeronomial, constant term available, then the polynomial is known as zeronomial। x पावर 0 अवेलेबल हुए तो 3 है, माइनस 5 है, दिस इज यहाँ पे x की पावर क्या है? 0, x पावर क्या है? 0, या y पावर 0, तो ये कौन सा मोनोमियल पोलिनोमियल हो गया? जीरोनोमियल। ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, थोड़ा वो बिग है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल। तो इनके केवल मैं नेम बता देता हूं आपको।
फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, इसके भी टाइप्स होंगे। सेकंड है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ इज बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका क्लासिफिकेशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे हम केवल आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरोनोमियल, ओके, और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू पावर ऑफ वेरिएबल, ये लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। इफ इन ए पॉलिनोमियल maximum power of variable is 1, maximum power of variable is 1, variable is 1, then the polynomial is known as linear polynomial. If in a polynomial maximum power of variable is 2, of maximum power of variable is equal to, then the polynomial is known as quadratic polynomial. और यहाँ पे cubic polynomial, when maximum power of variable is 3, then the polynomial is known as cubic polynomial. When maximum power of variable, maximum power of variable is 4, then the polynomial is known as biquadratic polynomial. तो linear polynomial maximum power of variable is 1, then the polynomial is known as linear polynomial. When maximum power of variable is 2, then the polynomial is known as quadratic polynomial. When maximum power of variable is 3, then the polynomial is known as cubic polynomial. When maximum power of variable is 4, then the polynomial is known as biquadratic polynomial, okay. इनका क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ these polynomial, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।